بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ فیکٹر آف اے نمبر کیا ہے، کسی بھی نمبر کا فیکٹر یہ کیا ہوتا ہے، یعنی کسی بھی عدد کا عاد یا جزو ضربی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فیکٹر کا کیا مطلب ہے، عاد یا جزو ضربی کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھیں گے۔ تو کسی بھی عدد کا عاد یا جزو ضربی یعنی وہ عدد جو دوسرے عدد کو پورا تقسیم کرتا ہے اسے عاد یا جزو ضربی کہتے ہیں۔ فیکٹر یعنی a number which divides another number exactly then the first number is called a factor of second number۔ یعنی اگر ہم کسی عدد سے دوسرے عدد کو تقسیم کریں اور اگر وہ عدد دوسرے عدد کو پورا تقسیم کر دے تو ہم پہلے عدد کو دوسرے عدد کا عاد یا جزو ضربی کہتے ہیں۔ یعنی آپ کسی نمبر سے دوسرے نمبر کو ڈیوائڈ کریں اور اگر پہلا نمبر دوسرے نمبر کو پورا ڈیوائڈ کر دیں تو ہم پہلے نمبر کو دوسرے نمبر کا فیکٹر کہتے ہیں، یعنی عاد یا جزو ضربی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی بھی نمبر کا فیکٹر یا عاد یا جزو ضربی کیا ہے یہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ہم اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں گے۔ یہاں پر ہمیں 15 کو 5 سے ڈیوائڈ کرنا ہے، 15 کو 5 سے تقسیم کرنا ہے۔ تو اگر ہم 15 کو 5 سے تقسیم کریں، 15 کو 5 سے ڈیوائڈ کریں تو ہمارا آنسر 3 آئے گا اور باقی کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15 کو 5 سے ڈیوائڈ کرنے پر ہمارا ریمائنڈر یعنی باقی صفر آ رہا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر 15 کو 5 سے ڈیوائڈ کرنے پر ریمائنڈر 0 آ رہا ہے، باقی صفر آ رہا ہے، تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ 15 یہ 5 سے پوری طرح سے ڈیوائڈ ہو گئے۔ تو چونکہ یہاں پر 15 کو 5 سے ڈیوائڈ کرنے پر کچھ نہیں بچ رہا ہے، ریمائنڈر 0 آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پر 5 کو 15 کا فیکٹر کہیں گے، یعنی 5 کو 15 کا عاد یا جزو ضربی کہیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہاں پر 13 کو 5 سے ڈیوائڈ کریں تو 13 کو 5 سے ڈیوائڈ کرنے پر ہمارا آنسر 2 آئے گا اور باقی 3 بچ جائیں گے، یعنی 13 کو 5 سے تقسیم کرنے پر جواب 2 آ رہا ہے اور باقی یعنی ریمائنڈر 3 آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 13 یہ 5 سے پوری طرح سے ڈیوائڈ نہیں ہوئے ہیں۔ تو چونکہ 13 یہاں پر 5 سے پوری طرح سے ڈیوائڈ نہیں ہوئے ہیں اس لیے ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ 5 یہ 13 کا فیکٹر نہیں ہے، یعنی 5 13 کا عاد یا جزو ضربی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جب ہم کسی نمبر سے دوسرے نمبر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اگر ریمائنڈر یا باقی صفر آتا ہے تو ہم پہلے نمبر کو دوسرے نمبر کا فیکٹر کہتے ہیں، یعنی پہلے نمبر کو دوسرے نمبر کا عاد یا جزو ضربی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب ہم کسی نمبر سے دوسرے نمبر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اگر ریمائنڈر یا باقی صفر نہیں آتا ہے تو ہم پہلے نمبر کو دوسرے نمبر کا فیکٹر نہیں کہتے ہیں۔ لیکن اس طریقے سے کسی بھی نمبر کا فیکٹر یا کسی بھی عدد کا عاد یا جزو ضربی معلوم کرنا تھوڑا مشکل ہوگا اور اس کے لیے کافی وقت بھی لگے گا۔ تو ہمارے پاس کوئی ایک ایسا آسان طریقہ ہونا چاہیے جس سے ہم آسانی سے کسی بھی نمبر کے فیکٹر کو یا کسی بھی عدد کے عاد یا جزو ضربی کو معلوم کر سکے۔ تو چلیے اب ہم اس طریقے کو سمجھیں گے جس طریقے سے ہم آسانی سے کسی بھی نمبر کے فیکٹر کو یا کسی بھی عدد کے عاد یا جزو ضربی کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر 20 کو 5 اور 4 کے پروڈکٹ کے فارم میں لکھا گیا ہے، 20 کو 5 اور 4 کے حاصل ضرب کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ اب اگر میں 20 کو 5 سے ڈیوائڈ کروں تو 20 کو 5 سے ڈیوائڈ کرنے پر ہمارا آنسر 4 آئے گا اور ریمائنڈر 0 آئے گا، یعنی 20 کو 5 سے ڈیوائڈ کرنے پر ریمائنڈر 0 آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 20 یہ 5 سے پوری طرح سے ڈیوائڈ ہو جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر میں 20 کو 4 سے ڈیوائڈ کروں تو 20 کو 4 سے ڈیوائڈ کرنے پر ہمارا آنسر 5 آئے گا اور ریمائنڈر 0 آئے گا۔ تو یہاں پر 20 کو 4 سے ڈیوائڈ کرنے پر بھی ریمائنڈر 0 آ رہا ہے، تو اس کا مطلب 20 یہ 4 سے پوری طرح سے ڈیوائڈ ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے 20 کو 5 اور 4 کے پروڈکٹ کے فارم میں لکھا، 20 کو 5 اور 4 کے ضرب کی صورت میں لکھا، تو 5 اور 4 یہ 20 کے عاد بن گئے یعنی جزو ضربی بن گئے، یعنی 5 اور 4 یہ 20 کے فیکٹرز بن گئے۔ تو اسی طرح سے جب بھی ہم کسی بھی عدد کو دو اعداد کی ضرب کی صورت میں لکھتے ہیں تو وہ دونوں اعداد اس عدد کے عاد یا جزو ضربی ہوتے ہیں۔ یعنی جب بھی ہم کسی بھی نمبر کو دو نمبرز کے
प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो दोनों नंबर उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए अब हम इस उसूल को जहन में रखकर मुख्तलिफ आदाद के फैक्टर्स या आद या जुज़्व ज़रबी मालूम करेंगे। तो अभी हमने क्या उसूल सीखा कि जब भी हम किसी भी अदद को दूसरे दो आदाद की ज़रब की सूरत में लिखते हैं तो वो दोनों आदाद उस अदद के आद या जुज़्व ज़रबी होते हैं। यानी हम जब भी किसी भी नंबर को दूसरे नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो दोनों नंबर्स उसके फैक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमें 18 के फैक्टर्स मालूम करना है, 18 के आद या जुज़्व ज़रबी मालूम करना है। तो 18 के आद या जुज़्व ज़रबी मालूम करने के लिए हम 18 को 18 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में या दो आदाद की ज़रब की सूरत में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 18 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, 6 इंटू 3 इज 18, 6 या 18 होते हैं। तो इस तरह से हमने 18 को दो आदाद की ज़रब की सूरत में लिखा। तो जैसे कि अभी हमने ये उसूल सीखा कि जब भी हम किसी भी अदद को दूसरे दो आदाद की ज़रब की सूरत में लिखते हैं तो वो दोनों आदाद दिए हुए अदद के आद या जुज़्व ज़रबी होते हैं। यानी जब भी हम किसी भी नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो दोनों नंबर उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 18 के फैक्टर्स होंगे 3 एंड 6, 3 और 6। इसी तरह से अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम 16 के फैक्टर्स को मालूम करेंगे। तो 16 के फैक्टर्स को 16 के आद या जुज़्व ज़रबी मालूम करने के लिए हम 16 को दो आदाद की ज़रब की सूरत में लिखेंगे, यानी दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 16 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। 2 इंटू 8 इज 16, 2 अठे 16 होते हैं। तो जब हमने 16 को दो आदाद की ज़रब की सूरत में लिखा, 16 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, तो ये दोनों आदाद 16 के फैक्टर्स बन जाएंगे, यानी ये दोनों आदाद 16 के आद या जुज़्व ज़रबी बन जाएंगे। तो इस तरह से फैक्टर्स ऑफ 16 यानी 16 के आद या जुज़्व ज़रबी होंगे 2 और 8। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स को या आद को या जुज़्व ज़रबी को आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आद या जुज़्व ज़रबी या फैक्टर्स के ताल्लुक से कुछ अहम पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक हर अदद का आद या जुज़्व ज़रबी होता है। यानी अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें, 1 से डिवाइड करें, तो हमें वही नंबर हासिल होता है और बाकी कुछ नहीं बचता। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर 9 को 1 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 9 आएगा और बाकी कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 को 1 पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 ये 9 का फैक्टर है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। यानी हर अदद का सबसे बड़ा आद या जुज़्व ज़रबी वो अदद खुद होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने 18 के फैक्टर्स को 18 के फैक्टर्स को लिखा है। 18 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 6, 9 और 18 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 के फैक्टर्स में से 18 ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 का सबसे बड़ा फैक्टर 18 ही है। तो इसी तरह से किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वही नंबर होता है, यानी किसी भी अदद का सबसे बड़ा आद या जुज़्व ज़रबी वो अदद खुद होता है। इसी तरह से अगला पॉइंट है द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। यानी हर अदद का आद या जुज़्व ज़रबी उस अदद से छोटा या उसके बराबर होता है। इसको हम मिसाल से समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 के फैक्टर, यहाँ पर हमने 12 के फैक्टर्स को लिखा है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये 12 के फैक्टर्स है, ये 12 के अज्जाए ज़रबी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 के फैक्टर्स में से 1, 2, 3, 4 और 6 ये 12 से छोटे हैं और 12 का एक फैक्टर ये 12 है जो कि 12 के बराबर है, उसके इक्वल है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स उस नंबर से छोटे होते हैं या उस नंबर के इक्वल होते हैं। इसी तरह से हमारा अगला पॉइंट है स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 1 एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। यानी हर अदद का सबसे छोटा आद या जुज़्व ज़रबी एक और सबसे बड़ा आद वो अदद खुद होता है। इसको भी हम मिसाल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 15 के फैक्टर्स को लिखा है। 15 के फैक्टर्स 1, 3, 5 और 15 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि 15 के फैक्टर्स में सबसे छोटा फैक्टर ये 1 है, और इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 का सबसे बड़ा फैक्टर ये 15 ही है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 15 का सबसे बड़ा फैक्टर 15 खुद वो अदद है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और उस नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। यानी किसी भी अदद का सबसे छोटा आद या जुज़्वे ज़रबी 1 होता है और उस अदद का सबसे बड़ा जुज़्वे ज़रबी वो अदद खुद होता है।